hearing some extraordinary stories of some extraordinary people, and they got the opportunity to come here and present themselves. Today, I'm taking the opportunity of this platform to share with you some other extraordinary stories of some extraordinary people who never get a chance to come on such stage and share their stories. I start with one such story of Geeta Didi. But her picture is blurred because we were not allowed to click her picture and show it to the world. The reason you'll get to know soon. When Geeta Didi came to Delhi, her husband sold her in the infamous red light area of Delhi, which is called GB Road. हम लोग अक्सर GB Road के बारे में सुनते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, वहाँ जाने का सोचते हैं, लेकिन मन का एक डर और मन का एक ताबू हमें वहाँ जाने से रोक देता है। यही सिर्फ एक गीता दीदी की कहानी नहीं है, उस GB Road पे रहने वाली 4000 औरतों की कहानी है, which I'm going to share with you right now, right here. Whenever we talk about such road, whenever we talk about a red light area, be it in Delhi, be it in Kolkata, be it in Mumbai, हम लोग जब भी इस सब के बारे में सोचते हैं, there are some words जो हमारे माइंड में आते हैं. Can you also please just think of what words comes to your mind when you think about a sex worker and when you think about a red light area, और जब आप एक कोठे के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या-क्या शब्द आते हैं? Before that, मैं उससे पहले आपसे कुछ और शेयर करना चाहती हूँ. तो मैं सोचती थी इन सब चीज़ों के बारे में, and I started searching more about it कि क्या है ये GB Road. And then I got to know some national data from Google, जिन्होंने मुझे बताया that there are 4 million sex workers in India, out of which 4,000 women are staying in these brothels in Delhi in GB Road. और वो 77 brothels is spreaded into 1 kilometer whole road. Well, these 4,000 women, and out of them 60% of them are mothers. They have children. और उन 60% mothers के 40% बच्चे स्कूल जाते हैं. This is as per the national data. क्या आप में से कोई एक जना कुछ ऐसा शब्द बता सकता है जो आपके दिमाग में आया हो? Anybody? डर Death. डर डर Dar. Okay, fear. Any other word which comes to your mind when you think of a kotha? That is their job actually. Okay. Helplessness leads to job. All right. So business or a job when it comes to a sex Not a worker. business, a job. Okay, a job. All right. Fine. The word which came to my mind when I thought about GB Road and when I thought about a kotha, the words which came were violent, forced sex, crime, rapes, darkness, taboo, forbidden, sadness, trafficking. For me, for you it's business, and for me when I reflected upon a kotha, all these words strike me. But this was a story some 5 to 6 years back. क्योंकि जब आज मैं सोचती हूँ GB Road के बारे में और जब मैं आज सोचती हूँ सेक्स वर्कर के बारे में, तो एक डिफरेंट पिक्चर आती है मेरे दिमाग में. कि लव, ड्रीम्स, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, होप एंड इनोसेंस. One day I got a chance to visit this road as a part of NACO, which was National AIDS Control Organization. I got a job of program officer और मुझे वहाँ पर जाके मॉनिटर करना था कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन HIV AIDS का प्रोजेक्ट चला रहे हैं वो आखिर अंदर कर क्या रहे हैं. Well, I remember the very first day जब मुझे न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन से रिक्शे वाले को ये बोलना था कि can you take me to GB Road. I was very scared क्योंकि ये बोलना मतलब आंखें सब आप ही को ही देख रही हैं. But I suddenly got that courage and I just told that रिक्शा वाला कि GB Road पे HDFC के opposite एक ऑफिस है और मुझे उस ऑफिस में जाना है. To be on the safer side, I used that. And when I reached the office, all the people were busy in showing me the paperwork, whatever they have done. They wanted to show me a good picture कि हम ये काम कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं. And I was not interested in that picture because I really wanted to go inside GB Road and see that brothel जो मेरे दिमाग में था, जो पिक्चरों ने मेरे दिमाग में डाला था. So finally, in the afternoon, I just told them that listen, I'm not interested in paperwork. Please take me to the field और मुझे दिखाओ कि आप लोग काम क्या कर रहे हो. और हम वहाँ पे गए. 4 staff members accompanied me, 4 males accompanied me. 2 मेरे आगे और 2 मेरे पीछे, as if मेरे bodyguards हो. मुझे नहीं पता था कि क्यों ये मेरे bodyguards बन के जा रहे हैं. और जब मैं उस वक्त पे चली, I was very disappointed.
आई इमेजिन कि औरतें खींच रही होंगी आदमियों को, क्योंकि यही पिक्चर मेरे दिमाग में डाली गई थी। बट वैसा तो कुछ भी नहीं था। यस देयर वर मेन, बट मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही थी कि वो मेन वहाँ पे उन औरतों के कस्टमर्स थे या जो हार्डवेयर की दुकानें हैं नीचे, बिकॉज दैट रोड इज ऑल्सो नोन एज एशियाज बिगेस्ट हार्डवेयर रोड। तो वो उनके कस्टमर्स थे या वो उन औरतों के कस्टमर्स थे? I could not differentiate. But one thing which I noticed that all the men were noticing me. I don't know why. Maybe शायद मैं किसी दूसरी दुनिया की लड़की जीबी रोड पर चल रही थी, मुझे नहीं पता। But मेरी जो इमेज थी दिमाग में जीबी रोड की, वो खत्म हो गई। जब मैं ऊपर गई स्टेयर्स पर, I was scared. I was genuinely scared. और जब मैं ऊपर गई, whatever picture I had in mind was real in front of my eyes. All the girls were sitting there like exhibition, with painted faces, and they were just waiting for the customers to come and pick them up, and then go into the encounter room, the sexual room which they call, and come out in 10 minutes. I was witnessing all this for 1 hour while sitting and conducting a meeting over there. Though my mind, my heart was not in that meeting, but still I had to conduct that meeting, so I was sitting there. And after that, when I got a chance to interact with women more and more, I realized that there is something hidden. कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है। मुझे सिर्फ यही दिखाया जा रहा है कि इनका HIV स्टेटस क्या है, इनका STI स्टेटस क्या है, इनमें से कौन सी औरतें कॉन्डोम इस्तेमाल करती हैं और कौन सी औरतों को HIV हो चुका है। लेकिन मुझे उसके पीछे की एक और स्टोरी थी जो नहीं पता चल रही थी, and nobody had answers for that. So I started visiting those brothels on myself. मैं वहाँ पर खुद से जाना शुरू कर दिया। इनफैक्ट इन द इवनिंग्स अपना प्रोग्राम ऑफिसर का झोला घर पर छोड़कर और मैं अपने 2 दोस्तों को साथ लिए उन कोठों में जाना शुरू हो गई शाम में। Until एक दिन, एक शाम में I was surrounded by some women and they became good friends. उनमें से कुछ औरतें मुझे अपनी बेटी की तरह मानना शुरू हो गई थी, उन्होंने लिटरली अडॉप्ट कर लिया था। And I was just asking them some personal questions कि दीदी आप कैसे आए और क्या होता है आपके साथ, आपको कैसा महसूस होता है। And then suddenly one of the lady asked me my personal question, do I have a boyfriend? And I was like, how can I share my personal story with a sex worker? मैं तो उनसे शेयर कर ही नहीं सकती हूँ। मैं मतलब वो मुझसे कैसे सवाल पूछ सकती हैं, तो मैं सवाल पूछने आई हूँ ना। And the other lady, the owner of that brothel, recognized my facial expression, and she just said, हो गया? तुम लोग बाहर से आकर सिर्फ हमारी कहानी ऐसे सुनते हो ऐसे कोई मूवी की कहानी हो, एक कोई फैंटेसी वर्ल्ड हो। You guys have made our life limited to condoms. Have you ever come, Gitanjali, to ask me whether I have dreams, whether I have aspirations? मेरे बच्चे पूरे दिन में क्या करते हैं, मैं क्या करना चाहती हूँ पूरे दिन में, कभी तुमने सवाल मुझसे आके पूछा है? And I had no answer for that. क्योंकि वो सही थी, मैंने सच में ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। And that was it. I asked my friends कि चलते हैं, हम लोग नीचे आए। And this गीता दीदी, she followed me downstairs. नीचे आके उनको दिखा कि मैं बहुत अपसेट सी हो गई हूँ। And she came to me and she said, Gitanjali, don't worry. वो सबको डांटती रहती है, वो अपना गुस्सा सब पे निकालती है, पर कहीं ना कहीं उनका गुस्सा बहुत सही था, जिसने मुझे बहुत अंदर तक छू दिया था। And I asked गीता दीदी, if you get a chance, will you study? And she laughed at me and she said, पढ़ाई 20 साल से तो मैंने कभी करी नहीं, जब से इन कोठों में आई हूँ, आगे का पता नहीं, कर भी सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ पता नहीं। मैंने कहा क्या करोगे अब यहाँ से निकलने के बाद? She said, वो तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरे को तो कुछ और काम आया ही नहीं 20 साल में, इसके बाद मेरा क्या होगा मुझे भी नहीं पता। And I said, if you get a chance to learn some other skill and to earn your livelihood through other means, she again gave me a smile and she said, मजाक कर रहे हो क्या? And there it was, because it wasn't a joke for me. मेरे को उनकी बात दिल पर लग गई थी बहुत बुरे तरीके से। And I just told her, गीता दीदी, I'll teach you, will you come? She said, हाँ। मैंने कहा ठीक है, तो कल सुबह 10 बजे मिलते हैं, आपके कमरे में मिले या नीचे सड़क पर पढ़ाई करेंगे? And she said, जहाँ आप बोलो। And then कथा started. हम लोगों की पढ़ाई की जर्नी वहीं से उसी दिन से गीता दीदी के साथ शुरू हो गई। बट उसके साथ साथ I started visiting more brothels, क्योंकि जो जवाब मुझे गीता दीदी ने दिया था, वो जवाब के पीछे भी एक पूरी की पूरी स्टोरी है।
must have heard about Big Bang Theory and all of that. And even in Harry Potter, it says that the problem to the solution to all the problems of the universe lies in number 42. If you just Google 42, you'll get all these details. कि 42 के पीछे history क्या है? And then when I reflected, the answer which I got to the problems of GB Road, that was also 42. Because जो मुझे झाड़ा गया था, वो 42 नंबर कोठा ही था. उन्हीं की मालकिन ने मुझे झाड़ा था. And I realized this is it. ये तो शायद पूरा यूनिवर्स चाहता है कि यही जवाब हो इस पूरी की पूरी GB Road का और इस पूरी GB Road की सारी प्रॉब्लम्स का. तो वहीं से हमारी क्लासेस शुरू हो गई. 42 gave us the answer and the journey started. Well, we went into different brothels, we met different women. और अब उनसे कॉन्डम की बातें नहीं होती थी, अब उनसे उनके सपनों की बातें होती थी. अब उनसे ये बातें नहीं होती थी कि उनके बच्चे को कौन कैसे देखता है. अब उनसे ये बातें होती थी कि उनका बच्चा अपने आप को कैसे दिखाना चाहता है. अब उनसे ये बातें नहीं होती थी कि दीदी अंगूठा लगा दो. अब उनको डांटा जाता था कि दीदी साइन करोगे तभी बात करेंगे. और इसी तरीके से धीरे धीरे हमारी जर्नी शुरू हुई. जितने भी हम लोगों के आइडियाज थे कुछ करने के, वो एक कहानी की फॉर्म में बदले. कहानी जो हम एक दूसरे को सुनाते थे, एक दूसरे से सुनते थे, बच्चों के साथ जीते थे. उस पूरी की पूरी कहानी ने एक प्लेटफॉर्म लिया और उस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म ने एक परिवार का शेप दिया. एक बहुत बड़ा परिवार, एक ऐसी जगह पे परिवार जहाँ पे परिवार नाम को वो लोग सिर्फ दो लोगों के बीच में रखते हैं, माँ और बेटी या माँ और बेटा. And there we were a family, a big happy family called Kattatha. Well, this is my family on GB Road. एक ऐसी सड़क जहाँ पे लोग जाने से भी डरते हैं और मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा सेफ इवन रात के 12 बजे उसी सड़क पर महसूस करती हूँ. मेरे पापा मुझे अक्सर कॉल करते हैं रात को 11 बजे, कहाँ है, और मैं कोठा नंबर बताती हूँ इसमें बैठी हूँ और वो बोलते थे को डर नहीं लग रहा. मैं बोलती पापा यहाँ तो नहीं लग रहा, सड़क पे आके पता नहीं. मतलब उस रोड पर तो एटलीस्ट मुझे डर नहीं लग रहा, बाहर जाके वर्ड नोस की क्या होगा. पर उस सड़क पर किसी की हिम्मत नहीं है गीतांजलि को उठ के देख लेने की या उसकी टीम को आंख उठाकर भी देख लेने की. खैर, ये है हमारा परिवार. ये सारे जितने भी बच्चे हैं, पीछे सब औरतें अपना फेस छुपाकर बैठे हुए हैं क्योंकि उन्हें हमेशा डर लगता है कि उनका फेस मीडिया में ना चला जाए या न्यूज़पेपर में ना चला जाए. तो हमने भी एक ऐसी ही पिक्चर सेलेक्ट करी जिसमें फेसेस ना दिख रहे हो. बट इस परिवार के पीछे भी एक जर्नी थी, क्योंकि कहीं पर भी एक परिवार बनाना इट्स नॉट ईजी. और खासकर एक ऐसी जगह पर जहाँ पर मैंने बताया कि सिर्फ माँ और बच्चा ही परिवार है, वहाँ पर परिवार बनाना बहुत मुश्किल था. क्योंकि किसी भी परिवार की नीड, द फाउंडेशन ऑफ एनी फैमिली, द सोल ऑफ एनी फैमिली लाइज इन एक्सेप्टेंस ऑफ ईच अदर. और जब मैं अपने पड़ोस वाली औरत को ही एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, अपने पड़ोस वाले बच्चे को ही एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ क्रिएटिंग अ फैमिली. So the first year of Kattatha went into creating a family. हमने वहाँ पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स तैयार करे जहाँ पे सब औरतें used to come together and we used to chat, we used to go out, ट्रेड फेयर में जाना, जो भी मेला लगता है दिल्ली में वहाँ पर जाना, खूब मस्ती करना. कहीं से अगर थोड़ी सी भी डोनेशन मिल गई तो खट से उस अपॉर्चुनिटी को लेकर बस कर लेना और पिकनिक कर देना. Because we just wanted opportunities to know each other better. एक कोठे की औरत दूसरे कोठे की औरत को नाम से भी नहीं जानती. And this was the time जब वो एक दूसरे की पूरी लाइफ जर्नी जानने लगे. And then they realized कि हम 4000 औरतों की सबकी similar stories हैं. So creating a family was a challenge in the very first year, but now we successfully say that I think we are Delhi's largest number of people we have in our family. क्योंकि हमारे पास ना सिर्फ 4000 औरतें हैं, जबकि अराउंड 4000 वॉलंटियर्स भी हैं जो हमको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस फैमिली को बनाने में सपोर्ट करते हैं. खैर, जब ये फैमिली हमारा बन रहा था, इंटीग्रेशन की बात हो रही थी कि कैसे हम एक दूसरे को आपस में इंटीग्रेट करें, एक दूसरे से बातचीत करने के प्लेटफॉर्म्स ढूंढे. उसी दौरान 3 और चीज़ें निकल कर आई. दैट वाज राइट्स, स्किल्स एंड एजुकेशन. एंड दीज 4 फ्रेंड्स टुगेदर गिव राइज टू Kattatha. सो जब हम उसमें और घुसे और हमने देखा कि इंटीग्रेशन क्या है और उसके साथ साथ और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो रियलाइज कि हम राइट्स की बात करते हैं. वी ऑफनली सेज दैट दीस सेक्स वर्कर्स आल्सो हैव राइट्स, बट वी ऑलवेज फॉरगेट कि सेक्स वर्कर के राइट्स है तो, लेकिन उनमें से किसी को पता नहीं है. यहाँ तक कि उनको ये भी नहीं पता कि एक औरत होने के क्या अधिकार है. तो हमारी जर्नी शुरू हुई उन औरतों को ये बताने के लिए कि आप और मैं बराबर हैं, जो मेरे
अधिकार है वही आपके अधिकार है. So we started our journey with rights. The first thing which we found out that nobody, very few of the women had identity cards with them. अगर उनको एक सिम कार्ड भी लेना होता था तो उनको ब्रोकर के थ्रू लेना पड़ता था. अगर उनको टिकट बुक करानी होती थी ट्रेन की तो वो भी एक ब्रोकर के थ्रू करानी होती थी. एंड फॉर दैट यू हैव टू पे ह्यूज अमाउंट. तो हमने स्टार्ट करा उनके आइडेंटिटी कार्ड्स बनवाने से. Few of them had identity cards already. Approached Election Commission and we said that officially the name of GB Road has been changed to Shraddhanand Marg 20 years back. Why aren't you changing it in your records? And then they also changed it. And now all the women on GB Road have a card saying Shraddhanand Marg on it. So well, that's one thing, one story. It was there for rights. The other one was integration. Like I said, the integration among the family was very important. उनके आपस में कोठों में वो इंटीग्रेशन जरूरी था. जब वो हुआ उसके बाद दूसरा चैलेंज आया आप लोगों का और मेरे जैसे लोगों का, मेरे परिवार वालों का, मेरे दोस्तों का, जो मेरे से ये बोलते थे कि यार किसी के सामने मत बोला कर कि तू जीबी रोड पर काम करती है, बहुत अजीब लगता है. एटलीस्ट मेट्रो में तो मत बोला कर कि तू जीबी रोड से आ रही है. वो दिमाग जो बदलना था, now that was again another challenge. वो चैलेंज से मैं आज भी जूझ रही हूँ. बहुत ही बुरी तरीके से हम लोग लड़ रहे हैं उस चैलेंज से रोज. इसीलिए कोशिश करते हैं to come into more and more talks and to go into more and more seminars so that हो सकता है उन 50 लोगों में से कोई एक इंसान तो जीबी रोड के बारे में कुछ और सोचना शुरू करेगा. So that was the other challenge of integration of these children with the outside world and these women with the outside world. But successfully हम लोग ये इंटीग्रेशन वाले पार्ट पे आजकल बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ये लार्जर सोसाइटी जीबी रोड को जीबी रोड की तरीके नहीं एक आम रोड के तरीके देखना शुरू कर दे. The next part was skills. Because जब गीता दीदी ने बोला था कि इसके बाद मेरे पास कमाने का और कोई जरिया नहीं है तो वो जरिया देना was very important. And then we thought of making those people skilled so that they can earn through what they are making. And we started with very basic things like paper basket, like wallets. और अभी हमारे बच्चे paper match से earrings and from waste material they are making some beautiful cards. The last part was education. क्योंकि जब तक पढ़ना लिखना नहीं आता है तब तक तो लार्जर सोसाइटी वैसे भी एक्सेप्ट नहीं करेगी. डिग्री के साथ भी नहीं एक्सेप्ट करती है तो बिना डिग्री के अगर थोड़ा भी पढ़ना लिखना नहीं आएगा तब तो बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं होगा. सो एजुकेशन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. दिस इज अगेन छुट्टू मास्टर. दिस इज रितु विद फिजा. Pala, well, she also has an interesting story. Another one. So here are we asking you, offering you to hold hands with these dream makers, with these change makers actually I can say. So we often say initiating change. और जब change की बात आती है तो हम लोग बहुत बड़ी बड़ी life stories, बहुत बड़ी बड़ी journeys में पहुंच जाते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि बदलाव आ जाए दुनिया में. हम ऐसा क्या करें कि पूरी दुनिया बहुत खूबसूरत बन जाए. तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ अपने आप को बदलने की ज़रूरत है जिसे हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं. So if you really want to bring a change in society, if you really want to bring a change in yourself, if you really want to see smiles around, come, let's join hands with these little change makers and make our city very beautiful.